Hello students, welcome to the chapter How do organisms reproduce? In last class, I told you that reproduction simply means to produce organism of its own kind, reproduction. Okay? Now, there has to be some blueprint inside the body or inside the cell, which is the unit of life, which has to be responsible for duplication. If it can duplicate, we agree that organisms give rise to organism of its own kind, and that is nothing but DNA, deoxyribonucleic acid. Last day I told you that this DNA is the only molecule within the cell which can make its own copy by the process of DNA duplication or DNA replication. When it copies, the two strands of DNA get separated and new strand is formed over the old one copying this. So ultimately what we see that the basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. This creates two copies of DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copy is separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. What is the meaning actually? Let me explain with the help of the structure of a cell. You know, this is cell, and inside the nucleus there is chromosome which contains DNA or which is made up of DNA. Suppose this structure is DNA. As you know, cell divides. There are different methods of cell division. I will be discussing the methods in short in next class. Let me tell you that DNA is duplicating. This is the cell. Inside this, DNA is duplicating. These two strands which got separated from each other, and the new strand is formed copying the old one. तो अब एक DNA से दो DNA बन चुका. Now what will happen? The cell will divide. अब सेल डिवाइड करेगा, इस तरह से कंस्ट्रिक्शन होकर सेल डिवाइड करेगा, और एज यू नो सेल के अंदर ये जो डीएनए है वो डबल हो चुका है, तो ये डीएनए. ओके, अब अल्टीमेटली सेल पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और एक सेल से हमारे पास अब दो सेल हो जाएंगे. तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना, लेकिन दोनों में ये जो डीएनए है, द डीएनए इज डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर. इसका मतलब अब ये दोनों सेल जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा सेल्स हैं, और दोनों में जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज सेम, दैट इज इंफॉर्मेशन इज बीइंग कॉपीड. सो डीएनए मेक्स एग्जैक्ट कॉपी. अब दोनों सेल में वही प्रॉपर्टी होगी जो इस सिंगल सेल में था, तो एक सेल से दो सेल हुआ. एक्चुअली यहाँ सेंटेंस में ये बताया गया कि एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है तो एक डीएनए ओरिजिनल सेल में रह जाएगा और दूसरा सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरा जो एक्स्ट्रा हो गया उसको अगर सेल नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट वर्क.
मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि डीएनए काम कैसे करता है। डीएनए का इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में जाता है और मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में बदलता है और प्रोटीन जो है वो फंक्शन करता है। अब ज़रा याद करो, क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स पर। बहुत सारे आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिसमें जो राइबोसोम्स होते हैं उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में फ्री भी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जाहिर है कि डीएनए को काम करने के लिए साइटोप्लाज्म भी चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड्स चाहिए। तो ढेर सारी चीज़ें चाहिए जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दैट इज़ नोन एज सेल्यूलर apparatus. दे आर कॉल्ड सेल्यूलर apparatus. तो केवल डीएनए का डुप्लीकेट होना ही काफ़ी नहीं है, दोनों डीएनए को 2 सेल्यूलर apparatus मिलने चाहिए, यानी 2 सेल मिलने चाहिए। तो एक सेल से 2 सेल बना। तो दिस इज़ द टेक्निक हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। बेसिक मॉलिक्यूल है डीएनए। डीएनए इज़ द बेसिक और द फंडामेंटल मॉलिक्यूल। DNA is the only molecule in the world or in the living world which can make its own copy. ये डुप्लीकेट कर सकता है और अपना कॉपी बना सकता है। तो DNA जब 1 से 2 होता है तो उसको काम करने के लिए सेल्यूलर apparatus की ज़रूरत होती है। इसलिए केवल DNA ही डुप्लीकेट नहीं करता बल्कि सेल भी डिवाइड करता है। इस तरह से सेल का भी डुप्लीकेट कॉपी बनता है। 2 सेल्स तैयार होते हैं, दोनों सेल एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे अगर दोनों का डीएनए एग्जैक्टली एक दूसरे का कॉपी होगा। ओके, आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस अगेन, लिसन इट केयरफुली। इस चैप्टर को मैं बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि हर लाइन आपको समझ में आए कि ये क्या कहा जा रहा है। लेट मी रिपीट। Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. जो दूसरी कॉपी डीएनए की है, अगर उसको सेल के बाहर यूं ही फेंक दिया जाए तो उसके पास कोई सेल का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होगा जो लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर सके। आप जानते हो कि सेल में लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। जितनी लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे सेलुलर लेवल पर भी होते हैं। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. एक डीएनए से अगर 2 डीएनए हो रहा है तो दूसरे के लिए एक एक्स्ट्रा यानी एडिशनल सेलुलर apparatus यानी सेल तैयार होगा। And then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively a cell divides to give rise to 2 cells. तो ऐसा होता है कि जब सेल डिवीज़न होता है उसके पहला स्टेज होता है कि डीएनए डुप्लीकेट करे और दूसरे स्टेज में सेल्स के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो साइटोप्लाज्म हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या राइबोसोम्स हो, एवरीथिंग गेट्स डबल्ड, जिसको हम कहते हैं सेल ग्रोथ। उसको हम कहते हैं सेल ग्रोथ। तो सेल में ग्रोथ होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है और उसके बाद एक सेल से 2 सेल बन जाता है और दोनों सेल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज 2 cells आर ऑफ कोर्स सिमिलर, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? क्या वो सचमुच बिल्कुल आइडेंटिकल यानी सेम होते हैं? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. Exactly वो सेम होगा, डुप्लीकेट होगा या नहीं,
वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कॉपिंग रिएक्शन है, डीएनए से डीएनए बनने की जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो कितना एक्यूरेट है। जब भी आप किसी बुक से या किसी के कॉपी से कुछ आंसर या कुछ भी टेक्स्ट जब कॉपी करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जैक्ट कॉपी करते हो। कभी मान लो कोई डॉट छूट गया, कहीं हो सकता है कि कैपिटल की जगह आपने स्मॉल लिख दिया, कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। एकदम से एक्यूरेट हो ज़रूरी नहीं, और उसका चांस बहुत कम होता है। मिस्टेक कम हो बट मिस्टेक्स होते हैं। एग्जैक्टली एक्यूरेट कॉपी नहीं बनता। तो किसी स्टूडेंट के बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, किसी के बहुत कम होते हैं, ढूंढना पड़ता है, एक आध मिस्टेक्स निकलता है। तो ये डिपेंड करता है कितना एक्यूरेटली कॉपी हुआ है। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. अब आपने जो कॉपी किया उसको जब आपने फ्रेंड को देते हो तो वो कॉपी करता है, आपकी गलती तो कॉपी हो ही जाती है, उसने भी कुछ गलती हो सकता है कर दिया हो, तो इस तरह से गलती बढ़ती चली जाती है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग गलतियाँ होती हैं। तो जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, एक्यूरेट बिल्कुल 100% नहीं होता, और उसकी वजह से उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। ईच टाइम व्हेन डीएनए मेक्स इट्स कॉपी देयर विल हैव सम variations. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. वो सेम तो होगा बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएशन जो हुआ इतना भयंकर हुआ, इतना ड्रास्टिक हुआ कि जो नया डीएनए बना उस वेरिएशन के साथ वो अपने सेल अपैरेटस के साथ, जो सेल अपैरेटस उसे मिला है उससे उसके साथ वो ठीक से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ऐसे नए सेल्स जो बने जिसमें ये नया वाला डीएनए है वो जिंदा नहीं रह सका, मर गया। सो सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। ऑन द अदर हैंड there would still be many other variations. There would still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. ये भी हो सकता है कि डीएनए में जो वेरिएशंस हुआ उसमें ऐसा कोई ड्रास्टिक आउटकम नहीं है। वेरिएशंस तो है लेकिन ड्रास्टिक आउटकम नहीं है। तो इससे क्या होगा? सर्वाइव करेगा। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. सेम तो होगा क्योंकि डीएनए ने अपना कॉपी बनाया है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगा। सो दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर ये जो टेंडेंसी है वेरिएशन की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। ये और बात है कि इस साल यानी 2020-21 में इवोल्यूशन चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो वेरिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। The importance of variation. Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. अब जानते हो कि हर पॉपुलेशन यानी हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है और उससे जो नया जनरेशन होता है वो किसी प्लेस में सर्वाइव करते हैं। तो जो प्लेस में सर्वाइव करता है, द प्लेस हैबिटेट जिसको कहते हो, हैबिटेट, तो ये जो वेल डिफाइंड प्लेसेस हैं, जैसे फिश लिव्स इन वाटर, वेल दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नीचेस। हैबिटेट जो है वो टर्म है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, और नीचे इज़ द टर्म इन विच
we discuss habitat plus the behavioral aspect of that organism. फिर से समझो, नीचे includes habitat, habitat word आपने पढ़ा हुआ है, as well as the behavioral pattern of the organism, including the physical surrounding, जहाँ रहता है प्लस चारों तरफ क्या है, प्लस उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो जो चाहिए वो सब वहाँ पे है या नहीं है। इफ़ फिश इज़ ड्रॉन आउट ऑफ वाटर इट विल डाई। फिश का हैबिटेट है वाटर, अगर वाटर से उसको हटा दिया जाए तो मर जाएगा। तो वाटर जो है उसका हैबिटेट है। अब उस वाटर में जिंदा रहने के लिए फ़िश क्या खाता है, ठीक है, क्या खाता है, खाने के लिए है कि नहीं। एक्वेरियम आप रखते हो तो उसमें मछली के लिए कुछ फूड डालते हो, तालाब में मछली रहती है तो वहाँ पर भी चारा डाला जाता है, या वहाँ जो एल्गी है या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको मछलियाँ खाती हैं, तो वो सब होना चाहिए। अगर आप मछली को प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर में डाल दोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी बात है, अगर हम पानी को बॉयल कर देंगे तो भी जिंदा नहीं रहेगी। पानी में बहुत सारा नमक मिला दें, यानी फ्रेश वाटर फ़िश को अगर हम सी वाटर में डाल दें तो भी मर जाएगी। सी वाटर के फ़िश को फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो भी मर जाएगी। तो किसी भी फ़िश का जो हैबिटेट है वो तो वाटर है, लेकिन नीचे की बात करें तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द सैलिनिटी ऑफ वाटर, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ प्रेजेंट सो दैट दैट फिश कैन सर्वाइव। कोई हर्बीवोर है तो एल्गी है कि नहीं, कार्निवोर है तो उसको खाने के लिए उससे छोटी छोटी मछलियाँ या दूसरे जीव जंतु है कि नहीं जिसको वो खाएंगे। ये सारी चीज़ें मिला करके कहलाता है नीचे। तो नीचे में क्या क्या है, हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का अपना बिहेवियर और उसका सराउंडिंग, फिज़िको केमिकल एनवायरनमेंट। फिज़िको केमिकल एनवायरनमेंट, एसिडिक है, एल्कालाइन है, कैसा है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, किस तरह के फूड है, कितना डेप्थ है, कितना प्रेशर है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तब कोई मछली सर्वाइव करती हैं। कुछ मछलियाँ सरफेस पे पाई जाती हैं, कुछ बॉटम में पाई जाती हैं, कुछ कीचड़ में पाई जाती हैं। तो जो पानी में ही रहना काफ़ी नहीं है, पानी के किस हिस्से में रहते हैं, क्या खाते हैं, किस समय निकलते हैं, ये सारी बातें जब हम मिला करके डिस्क्राइब करते हैं तो वो उस फिश का नीचे है, ठीक है। सो पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो वेल डिफाइंड प्लेस, यानी जो प्लेस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ वो सर्वाइव करेगा, उसका अच्छी तरह से डेफिनेशन। दूसरे शब्दों में कहें तो नीचे, वो किसी खास नीचे में रहता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग के साथ नॉन लिविंग का इंटरैक्शन, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना नीचे होता है इकोसिस्टम में। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA कॉपीइंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन features that allow the organism to use their particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of populations of species. तो एक ऑर्गेनिज्म जिस तरह के नीचे में रहता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी डिज़ाइन जो है सूट करता है वहाँ पे, और उस बॉडी डिज़ाइन को अगले जनरेशन में भी मेंटेन करने के लिए उसके DNA को कॉपी करना पड़ता है, ताकि जब रिप्रोडक्शन हो तो उसके ही जैसा बॉडी डिज़ाइन का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो। अगर ये बॉडी डिज़ाइन मेंटेन नहीं होगा तो जिस पर्टिकुलर नीचे में ये ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ उसको मुश्किल हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़। तो जो पॉपुलेशन है स्पीसीज़ की, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए ये जो रिप्रोडक्शन है यानी जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है।
However, niches can change because of reasons beyond the control of organisms. Organisms के अंदर DNA कॉपी होता है, DNA कॉपी होता है तो ऑर्गेनिज्म का भी कॉपी बनता है, वैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ताकि जिस नीचे में वो रहता है उस नीचे में वो जिंदा रह सके। लेकिन कभी कभी नीचे में भी चेंज आता है, देयर कैन बी सम चेंजेस, और चेंज का रीज़न ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बाहर हो सकता है। लाइक टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। ये तो हमारे किसी ऑर्गेनिज्म के बस की बात नहीं है। टेम्परेचर, मान लो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ डूब जा रहे हैं। अभी आप जानते हो कि इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो ये जो गड़बड़ हो रही है इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम होती है। तो और देयर कुड बी मेटेराइट हिट्स और थिंक ऑफ ए न्यू एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन जो किसी खास नीचे में ऑलरेडी सूट कर चुका है और उस नीचे में अचानक ड्रास्टिकली कोई चेंज आता है, ड्रास्टिकली अगर नीचे अल्टर्ड हो जाता है, तो वो जो पॉपुलेशन है वो जी नहीं पाएगा और सारे के सारे वाइप्ड आउट यानी मिट जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सम वेरिएशंस वेयर टू बी प्रेजेंट। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि डीएनए जब डुप्लिकेट करता है तो डुप्लिकेट करते समय वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो नए डीएनएस बनते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो पॉपुलेशन में जो बहुत लार्ज नंबर है पॉपुलेशंस का, करोड़ों में जो पॉपुलेशंस हैं उसमें कई तरह के वेरिएशंस होंगे, क्योंकि सभी तो डीएनए से कॉपी होकर बनता है और कॉपी होते समय उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, वेरिएशंस आता है। तो कुछ वेरिएशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो उस ड्रास्टिकली चेंज्ड नीचे जो है, ड्रास्टिकली चेंज्ड और ड्रास्टिकली अल्टर्ड एनवायरनमेंट जो है उसमें सूट कर जाए। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के वेरिएशंस होंगे जो चेंज्ड एनवायरनमेंट यानी चेंज्ड नीचे में सर्वाइव कर सकें, उसके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, वो तो सूटेबल हो गया, तो कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. Variation is thus useful for the survival of species over time. Variations is thus useful for the survival of species over time. तो यहाँ पर ये बताया गया कि मान लो कि बैक्टीरिया का एक पॉपुलेशन जिस पानी में रहता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया पिछले टेम्परेचर के आदी थे वो तो मर जाएंगे, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन में फ्यू बैक्टीरिया यानी थोड़े से भी बैक्टीरिया में ये वेरिएशन हो कि वो हीट रेसिस्टेंट हो, यानी वो हीट को बर्दाश्त कर सकें, तो वो बच जाएंगे, बाकी बेशक मर जाएंगे। तो ये जो फ्यू बैक्टीरिया बच गए, अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, यानी उसके आने वाले जो जनरेशन्स होंगे वो हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होंगे। तो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया से हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हुए, हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया से हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हुए, यानी इवोल्यूशन हुआ। बैक्टीरिया में एक तरह का चेंज आया कि वो टेम्परेचर को अब बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया भी बच गया, बैक्टीरिया की जो स्पीसीज़ है वो बच गई,
नहीं तो सारे बैक्टीरिया मारे जाते। ठीक है, अगर सभी एक तरह के कॉपी होते, एग्जैक्ट कॉपी होते एक दूसरे के, तो सारे मरते। लेकिन चूंकि यहाँ वेरिएशन की संभावना है, इसलिए कुछ बैक्टीरिया जिसमें ये वेरिएशन हो कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, दे विल सर्वाइव and they will reproduce. So by reproduction the population will increase. Population of what? Population of heat resistant bacteria. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के दो वैरायटी हो गए, एक जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरा जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह से वेरिएशन अगर ना होता तो बैक्टीरिया ही ख़त्म हो जाता है। सो रिप्रोडक्शन इज़ significant or important for survival of species over time. समय के साथ साथ वो स्पीसीज सर्वाइव करता रहे, इसके लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका नोट्स दूंगी, इसको एक एक लाइन आप पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। ओके, टिल देन बाय।